Hello students, this is Disha Shah and welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss a very important topic. So if you are preparing for MCA, NIMSET, JEE, ARC and other competitive exam, then this particular topic is very important. The name of the topic is straight lines. Okay, so this particular topic we have divided into 4 parts and today is the first part. So let's first share me this First, let me allow to share the screen with you. Okay. So the name of the topic, as I said, it's a straight lines. And this model we have divided into 4 parts. In the first model, that is today's model, we will learn about Cartesian coordinate system, distance formula, midpoint formula, and section formula. Second part, now we will learn about the equation of the line. Third part, we will learn about the parallel perpendicular lines or the angle between the lines. And in the fourth part, we will learn about the equation of pair of straight lines. So today is the first part. So in this part, we will discuss about Cartesian coordinate system, distance, midpoint, section formula. So let's start with the topic. Okay, so there was a French philosopher, mathematician, scientist. His name was René Descartes. Name was René Descartes. He was a French philosopher, mathematician, and scientist. Okay, so Cartesian coordinate system, ये जो नाम है, this name is given after this particular scientist, René Descartes, whose invention of them in the 17th century revolutionized the mathematics by allowing the expression of problems of geometry in terms of algebra and calculus. तो ये वो इंसान था जिसने ज्योमेट्री को एल्जेब्रा और कैलकुलस के साथ मिक्स करके he represented geometry in the form of algebra and calculus. Okay, so using the Cartesian coordinate system, geometric shapes such as straight line, curves, circle, triangle, anything can be written in the form of an equation. Okay, so this person, he was the one who introduced the Cartesian coordinate system, and hence the name is given as Cartesian coordinate system after the name of René Descartes. Okay, so what is a coordinate geometry basically? ज्योमेट्री तो हम सबको पता है कि ज्योमेट्री क्या होता है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है? एवरीथिंग हैज कोऑर्डिनेट्स हियर. स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर बाय प्लॉटिंग देम इन 2D प्लेन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो एक जब हम लाइन बनाते हैं तो ये जो लाइन होता है ये ज्योमेट्री की दुनिया है, लेकिन इस लाइन के ऊपर अगर हम कुछ कोऑर्डिनेट्स, अगर ये लाइन एक पर्टिकुलर जगह पे है, उसका एक पर्टिकुलर पोजीशन है, देन दिस इज अ पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो कोई भी कर्व है, कोई भी डिजाइन है, कोई भी शेप है ज्योमेट्री का, सच एज लाइन, कर्व, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सभी की सभी चीज को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बना सकते हैं एंड दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. सो जैसे मैंने ये एक पॉइंट बनाया, ओके, ज्योमेट्री की दुनिया में इसे एक पॉइंट कहेंगे, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहां नहीं रुकता. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये पूछता है कि ये पॉइंट तो है, ठीक है, लेकिन ये पॉइंट कहाँ बनाया है. सो सिर्फ पॉइंट होना काफी नहीं है, पॉइंट का पोजीशन भी पता होना जरूरी है. और इसीलिए हर पॉइंट का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दुनिया में हर पॉइंट का एक एड्रेस होता है. जैसे हम सबका एक एड्रेस है. फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक ऐसी जगह जाते हो जहां पर किसी को भी नहीं पता कि आप इंडियन हो. ओके, नो वन नोज दैट व्हाट इज इंडिया, व्हाट इज एशिया, किसी को कुछ नहीं पता. और वहां पर जाके अगर आपको किसी को अपना एड्रेस बताना है तो आप अपना एड्रेस कैसे बताओगे? बिकॉज दैट पर्सन डज नॉट नो दैट यू लिव इन इंडिया. उसको इंडिया नाम की कोई चीज ही नहीं पता, उसको एशिया क्या है नहीं पता, उसको अमेरिका लंदन क्या है नहीं पता. उसे अगर आपको अपना एड्रेस बताना है तो आप कैसे बताओगे? सो ज्योग्राफी में हमने ये पढ़ा था कि देर इज समथिंग कॉल्ड एज लेटीट्यूड एंड देर इज समथिंग कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूड. तो एक्चुअली में वो हमारा एड्रेस होता है, लेटीट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड. सिमिलरली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दुनिया में हर एक पॉइंट का एक एड्रेस होता है और उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट. फॉर अ 2 डायमेंशनल स्पेस देयर आर 2 कोऑर्डिनेट, वन इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड वन इज वाई कोऑर्डिनेट. एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है, वाई कोऑर्डिनेट बाद में लिखा जाता है. दिस इज हाउ वी राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट. सो बेसिकली दिस इज द एड्रेस ऑफ अ पॉइंट.
अभी ये कैसे लिखा जाता है, लेट्स सी दैट। सो आई बिलीव सबने ये स्कूल में देखा है। ओके, ग्राफ पेपर सबने देखा है, और ग्राफ पेपर के ऊपर पॉइंट्स भी सबने प्लॉट किए होंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ दिस। There is a horizontal line. This horizontal line is called as x-axis, and there is a vertical line. This vertical line is called as y-axis. The place, the position, the point where this two lines, x-axis and y-axis, horizontal and vertical, they meet, that point is called origin. That point is called origin. और origin के जो coordinates होते हैं वो होते हैं 0, 0, यानी कि this first we have to write is the x coordinate and next we have to write is the y coordinate. Origin का x coordinate and y coordinate both are 0. So this is how you can write the coordinates of origin. ठीक है, अभी हम origin से अगर right side पे आने लगे on the x axis, then here this all these points are positive. This is the positive value of x axis, so इसको हम प्लस एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड दिस इज द नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका एक्स कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव। सिमिलरली ओरिजिन से अगर आप हम ऊपर की ओर जाते हैं, देन दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस, एंड ओरिजिन से नीचे की ओर जाना, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वाई एक्सिस। अभी आप देख रहे हो कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वजह से ये जो अपना ग्राफ है ना, उसके चार टुकड़े हो चुके हैं। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, and we have to go in anti-clockwise direction. So this is the second quadrant, this is the third quadrant, and this is the fourth quadrant. अभी आप देखोगे तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये बना कैसे है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यू कैन सी कि ये पार्ट से और ये पार्ट से हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट बना है, which is this part. This is nothing but the positive x-axis and this line is the positive y-axis. So first quadrant में we can say that x coordinate and y coordinate both are positive. Now if we'll go to the second quadrant, तो second quadrant बनता है ये negative x-axis से and positive y-axis से, and hence in the second quadrant the x coordinate is negative whereas the y coordinate is positive. Now let's come to the third quadrant. Third quadrant बनता है negative x axis से and negative y axis से, and hence in the third quadrant both the coordinates of any point are always negative. So third quadrant में जितने भी points होंगे उनका x and y coordinate both are negative. Now let's come to the last, that is final quadrant. So here this particular quadrant where you can see that there is positive x-axis and there is negative y-axis. So इस quadrant में जितने भी points होंगे उनका x-axis positive होगा, y-axis sorry x coordinate positive होगा and y coordinate is negative. I believe this we had studied in the school. ठीक है, so first quadrant both coordinates are positive, second quadrant x negative y positive, third quadrant both are negative, and the fourth quadrant x coordinate positive y coordinate negative. एक बार पॉइंट्स को प्लॉट करके देख लेते हैं कि कोई भी पॉइंट को प्लॉट करना है आपको ऑन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो आप कैसे करोगे। फॉर एन एग्जांपल, इफ आई वांट टू प्लॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0, 0, नाउ वी नो दैट कि 0, 0 इज नथिंग बट द ओरिजिन, और ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन इज द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट है 0, 0. नाउ आई हैव टू प्लॉट द पॉइंट नाउ 1, 3. सो एक्स कोऑर्डिनेट इज 1 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 3. तो हमें क्या करना है, both this are coordinates are positive, so we know that the point is going to lie in the first quadrant. x coordinate positive है तो x की वैल्यू 1 कहां पर है, this is the value, x here is 1 and y is 3. y3 कहां है, ये यहाँ रहा। सो हमें क्या करना है, यहां से एक लाइन ऐसे बनानी है और ये दोनों पॉइंट को मिक्स करके यहाँ मैच करना है। So this is the point whose coordinate is 1, 3. ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है 1, 3. नाउ आप एक चीज इसमें नोटिस करो कि ये जो x कोऑर्डिनेट है
जिसको हमने 1 बोला है, दिस इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। अगर मैं आपको बोलूं कि ये पॉइंट जो है इसका डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना है, तो कैन आई से दिस इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, एंड कैन आई से दिस डिस्टेंस इज 1। Similarly, what does 3 here? 3 is nothing but the distance of this point from x-axis. We know that this distance is 3. ठीक है? So x coordinate क्या represent करता है? It is nothing but the distance from y-axis, and y coordinate represents the distance from x-axis. ठीक है? Next point, -3, -1. You can see here that x coordinate is negative. So this is -3, x -3, and y coordinate is positive, so y is 1. So ये पॉइंट यहां बन के आ जाएगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे -3, 1, since x negative, y positive, so this particular point is going to lie in the second quadrant. Next, here you can see this is the point whose coordinates are -2, -2, both the coordinates negative, so this point will going to lie in the third quadrant, और वो यहां आ जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट का ये जो डिस्टेंस कोऑर्डिनेट इज -2, एक्स कोऑर्डिनेट इज -2, इसका मतलब है कि इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस 2 का है। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी 2 है। सिमिलरली वी कैन प्लॉट द पॉइंट 3, -2। 3, -2 यहाँ आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, अगर आपको कोई बोले कि प्लॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट 0, 5, 0, 5 मतलब x कोऑर्डिनेट 0 है एंड y कोऑर्डिनेट 5 है। x कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से 0 है। इस पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से 0 है। इसका मतलब है कि ये पॉइंट कहाँ होगा? कैन आई से दिस पॉइंट इज ऑन y एक्सिस इटसेल्फ, क्योंकि y एक्सिस से इसका कोई डिस्टेंस ही नहीं है, 0 है। इट मींस दैट द पॉइंट इज लाइंग ऑन y एक्सिस। तो जब भी कोई भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब है कि वो पॉइंट y एक्सिस पे है, एंड y कोऑर्डिनेट इज 5, सो दिस इज द पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 0, 5। नेक्स्ट, -3, 0. Now this point has its y coordinate 0. It means that the point is lying on x axis. और -3 है, यानी कि -3 यहाँ पर है x axis में. So this is the point whose coordinate is -3, 0. ठीक है, तो बेसिक ये सब चीजें हमने स्कूल में पढ़ी है, हम सिर्फ उसे रिवाइज कर रहे हैं। ओके, नाउ what we learned here, that if the point is lying on x-axis, then its y coordinate is 0, and if the point is lying on x-axis, then its x coordinate is 0. Okay, if the line is parallel to x-axis, तो उसका y coordinate constant होगा। For an example, मैं आपको बोलूं कि ओके एक पॉइंट बनाओ wherein suppose it is like this, x coordinate, this is 1 point 3, 1, this is another point 3, 2, this is another point 3, 3. Okay, let's see, this point is p, let's this point q and r. Now this point p whose coordinates are 3, 1, ये कहाँ आएगा? वो यहाँ आ जाएगा 3, 1. Similarly point q whose coordinate is 3, 2, वो यहाँ आ जाएगा, and point r whose coordinate is 3, 3, वो यहाँ आ जाएगा। Now ये तीनों पॉइंट में एक चीज कॉमन है, और वो है कि तीनों का x कोऑर्डिनेट कॉमन है, यानी कि ये तीनों पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज सेम। और इसीलिए आप देख रहे हो, क्योंकि उनका डिस्टेंस y एक्सिस से सेम है, तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स, कैन वी से दिस पॉइंट्स आर पैरेलल टू y एक्सिस? कैन वी से द पॉइंट्स आर पैरेलल टू y एक्सिस, और इसीलिए इनके x कोऑर्डिनेट सेम है। ओके, तो इस पर्टिकुलर ये जो लाइन आपको दिख रही है, अगर कोई आपको इस लाइन का इक्वेशन पूछे कि इस लाइन का इक्वेशन क्या है, तो इस लाइन का इक्वेशन
क्योंकि ये तीनों की तीनों जो लाइन्स है उसके एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, तो इस लाइन का इक्वेशन बन जाएगा x इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, तो ये लाइन जो ये तीनों पॉइंट से पास हो रही है, आप देख रहे हो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। ठीक है, देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑन दिस लाइन, लेकिन ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सब में एक चीज कॉमन है कि उनका एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, इसीलिए इस लाइन की इक्वेशन बन के आ जाती है x इज इक्वल टू 3। ये सभी पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स डेफिनेटली डिफरेंट होंगे, बट x कोऑर्डिनेट इज फिक्स एंड hence if someone ask you to draw a line whose equation is x is equal to 3, तो आप लाइन को ऐसे ड्रॉ करोगे, x is equal to 3 है, it means that the line is parallel to y axis। ठीक है, चलिए एक लाइन बनाते हैं, लाइन x is equal to 4, ये कैसा दिखेगा? नाउ हियर द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x इज इक्वल टू 4, मतलब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनका x कोऑर्डिनेट 4 है, y कोऑर्डिनेट चेंज होगा बट x कोऑर्डिनेट 4 है। इट मींस कि दिस इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, क्योंकि इनका डिस्टेंस y एक्सिस से 4 का है, तो वो लाइन कुछ ऐसी बनेगी। दिस इज अ लाइन, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका x कोऑर्डिनेट 4 होगा, y कोऑर्डिनेट चेंज होता रहेगा, एंड हैंस द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x इज इक्वल टू 4। सिमिलरली y इज इक्वल टू 3, ये लाइन कैसा दिखेगा? सो y इज इक्वल टू 3 इज अ लाइन जिसके इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 3, एंड हैंस दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। पैरेलल टू x एक्सिस बनाना है और y की वैल्यू 3 है, it means कि it should pass from this particular point and this line is parallel to x axis, तो वो लाइन कुछ ऐसा बनेगा। इस लाइन का इक्वेशन बन जाएगा y is equal to 3। Similarly, if x is equal to -2, once again this line is parallel to y axis and the line will pass from the x axis on -2, so this is the line जिसका इक्वेशन है x इज इक्वल टू -2। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो लाइन है, दिस x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज आर y एक्सिस, ये अपना ओरिजिन इंटरसेक्शन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस देन? x एक्सिस का इक्वेशन अगर आपसे कोई पूछ ले तो वो क्या बनेगा? नाउ कैन आई से कि x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सभी के सभी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज 0, बिकॉज सॉरी डिस्टेंस फ्रॉम x इज 0, करेक्ट? ये जितने भी पॉइंट्स है इसका डिस्टेंस फ्रॉम x इज 0, करेक्ट? इसका मतलब है कि इन सभी पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट इज 0, करेक्ट? ये x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, फॉर एन एग्जांपल इफ आई टेक दिस पॉइंट, तो इसका कोऑर्डिनेट है 5,0। इफ आई टेक दिस पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट है -2,0। सो इस x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका y कोऑर्डिनेट इज 0, एंड हैंस द इक्वेशन ऑफ लाइन इज y is equal to 0. Similarly, if someone asks you what is the equation of y-axis, so equation of y-axis is x is equal to 0, क्योंकि इनका डिस्टेंस x-axis से 0 है, sorry y-axis से 0। Okay, now let's solve some basic questions. Find the equation of a line which is parallel to y-axis. Now, since the line is parallel to y-axis, तो इक्वेशन ऐसा बनेगा x इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है, क्योंकि इस इक्वेशन, ये लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, यानी कि इसके x कोऑर्डिनेट सेम होंगे। ओके, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? सो दिस इज द लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ इट। y के पैरेलल में है, मतलब इट इज अ वर्टिकल लाइन, एंड कहां पर है? डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स टू द लेफ्ट साइड, यानी कि लेफ्ट साइड में 5 यूनिट के डिस्टेंस पे है। सो ये लाइन कुछ ऐसा है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या बन जाएगा? इस लाइन का इक्वेशन बन जाएगा x इज इक्वल टू -5, क्योंकि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका x कोऑर्डिनेट
-5 ही बनेगा। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिस थ्रू 4, -7। 4, -7 आप इमेजिन कर सकते हो, वो यहाँ पर कहीं आएगा। ठीक है, अगर इसको हम -7 बोल दें, सो पॉइंट इज गोइंग टू बी समवेयर हियर। दिस इज द पॉइंट 4, -7। ठीक है, एंड दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी कि ये जो लाइन है ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा? नाउ सिंस दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इस लाइन के y कोऑर्डिनेट फिक्स होंगे, और y कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट हमें पता है वो है -7। तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका y कोऑर्डिनेट इज -7, एंड hence द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y is equal to -7. This is the answer. Okay, now let's understand what is a straight line. So a straight line is an infinite length line that does not have any curves on it. Okay, a straight line can be formed between 2 points, but both this extend to infinity. A straight line is a figure formed when 2 points x1, y1 are connected with the shortest distance between them. Okay, so suppose there is one point A and its coordinate is x1 and y1, and second point is B and उसके coordinates है x2, y2। एंड अगर आपको इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन, मतलब इन दोनों पॉइंट को मुझे कनेक्ट करना है, तो there are multiple ways through which I can join these 2 points. One method is this, I can join like this. One method is this, I can join like this. And one method is this, I can join like this. So this is the first method. Second, थ्री, वैसे इनफाइनाइट तरीके से आप दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि आपको दो पॉइंट को इस तरह से ज्वाइन करना है, so that the distance between the 2 points should be shortest, so that can be done only if you draw a straight line between A and B. So straight line is nothing but the shortest distance between 2 points. Okay, now if I want to find the distance, for an example, ये एक point है A and this is another point B. Okay, and if I want to find the distance, the length of this line AB, this is not a line, let's say this is a line segment, A and B are the end points, और मुझे इनके coordinates पता है, I know the coordinate of point A, I know the coordinate of point B. तो अगर मुझे दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो I can find the distance AB. I can find the length of this line segment AB. इसका लेंथ हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? Let's understand. Okay, suppose this is the x-axis and this is y-axis. This is x-axis and suppose this is y-axis. Now, here you can see that there is one point. Suppose this point is A. Its coordinate is x1, y1. This is another point B. Its coordinate is x2, y2. I want to find the length of segment AB. तो कैसे निकालोगे? So ये देखिए, ये x1 है. So can I say कि this is nothing but this distance is x1. Similarly, this is x2. So can I say ये जो distance है यहाँ से लेके यहाँ तक का, this is x2. So if I want to find this distance, ये वाला distance, suppose this point is C. Suppose if I want to find C, can I say C is nothing but x2 AC, sorry, the length of this segment AC, can I say it is x2 minus x1? Similarly, ये जो पूरा distance है यहाँ से लेके यहाँ तक का, this distance is y2, और ये जो distance है, this distance is y1. Okay, so from this I can say that BC is equal to y2 minus y1. Can we say this? Yes. So this is A, this is point B, and this is point C. This distance is x2 minus x1 and this distance is y2 minus y1. हमें निकालना है AB का लेंथ। इसको देख के हमें याद आ रही है पाइथागोरस की। ठीक है, so can I say here that
ए बी का स्क्वायर पाइथागोरस के हिसाब से ए बी का स्क्वायर इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. वाई? बिकॉज ए बी का स्क्वायर इज नथिंग बट ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर. करेक्ट? ये पाइथागोरस बाबा बोलते हैं. सो फ्रॉम दिस आई कैन से दैट कि ए बी इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. दिस इज द आंसर. ये बन गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला. ठीक है? तो अगर आपको दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है तो आप उनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो using the formula, distance formula. This is a very, very important formula. Okay, so let's find the distance between the 2 points 3, -2, -7, -5. इसको हम बोलते हैं x1. Suppose this is y1, this is x2 and this is y2. क्या पहले वाले को ही x1 y1 बोलना जरूरी है? नहीं. आप -7 इसको भी आप x1 बोल सकते हो और इसको x1 बोलेंगे तो इसको y1 बोलना. दैट इज अलाउड. यू कैन डू दिस. जरूरी नहीं है कि फर्स्ट को ही आप x1 बोले. डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. x2 इज -7, so it is -7 -3 का होल स्क्वायर प्लस -5. नाउ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो -5 + 2 का स्क्वायर. -7 -3 इज -10. -10 का स्क्वायर होता है 100 एंड -5 + 2 -3. -3 का स्क्वायर होता है 9. सो आंसर इज अंडर रूट ऑफ 109. नेक्स्ट, वेयर डू वी यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला? ओके, सो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम बहुत सारी चीजें प्रूव कर सकते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला. सो if suppose there are 3 points A, B and C and you know the coordinates of all the 3 points, तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, तो उससे आप, since you know the coordinates, so you can find AB also, length AB, we can find length AC also and we can find length BC also. Now since we can find all the 3 lengths, suppose AB plus BC is equal to CA आ गया. इसका मतलब है कि कैन आई से ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. तीनों के तीनों पॉइंट्स एक लाइन में बैठे होंगे ऐसे, बिकॉज ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए सिर्फ तभी बन सकता है व्हेन द पॉइंट्स आर कोलिनियर. अच्छा, मान लो कि ये तीनों की तीनों लेंथ इक्वल है, देन कैन वी से दैट दिस इज नथिंग बट एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है एबीसी. सपोज इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन कैन आई से दैट दिस इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. ठीक है? Suppose all the length of this AB, AC, BC, all the 3 are different. So can we say that this is nothing but an scalene triangle because तीनों की तीनों length different है. और अगर कोई भी दो length same आ गई, can we say that this is as isosceles triangle? और अगर हम ये प्रूव कर दे कि AB square plus BC square is equal to CA square, so can we say it is a right angle triangle? देखो 3 पॉइंट है ABC, ये तीनों पॉइंट से सिर्फ दो ही चीज हो सकती है. तीनों पॉइंट से आप दो ही चीज कर सकते हो. या तो तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे इस टाइप का, या तो फिर तीनों के तीनों पॉइंट्स कोई एक ट्राइंगल बनाते होंगे. 3 पॉइंट के साथ दो ही चीज हो सकती है, या तो वो कोई ट्राइंगल बना के देंगे और द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. सो इफ यू नो द वर्टाइसेस, इफ यू नो द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस 3 पॉइंट, सो यू कैन फाइंड द लेंथ. और इससे आप ये प्रूव कर सकते हो, ये बता सकते हो कि पॉइंट्स किस तरह से रखे गए हैं, whether the points are collinear or whether they are making a triangle. और अगर वो ट्राइंगल बना रहे तो कौन से टाइप का ट्राइंगल बनाते हैं ये भी हम निकाल सकते हैं, बिकॉज वी नो द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल. ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज इफ द पॉइंट्स 0, 0, 2, 2 root 3 and AB are the vertices of an equilateral triangle, then find the point EB. Okay, तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है. Suppose this is point A, its coordinate is 0, 0. This is point B, इसके कोऑर्डिनेट से 2, 2 root 3 and this is point C, इसके कोऑर्डिनेट से AB. आपको C के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं बेसिकली. नाउ सिंस दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो आई नो कि AB is equal to AC is equal to BC.
ठीक है, पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी कितना हो जाएगा? So this is nothing but we have to use the distance formula here. So it is x2 minus x1 का square. So it is 2 minus 0 का square. 2 minus 0 का square होता है 4 and plus 2 root 3 minus 0 का square. So 2 root 3 minus 0 is 2 root 3 only. 2 का square होता है 4, root 3 का square होता है 3. So this is nothing but 4 plus 12. So this is 4. ठीक है, next let's find AC. AC कितना हो जाएगा? So can I say AC is nothing but a minus 0 का square, that is a square, and plus b minus 0 का square, that is b square. So this is under root of a square plus b square. Similarly अगर हम a bc निकाल दें, तो bc क्या बन जाएगा? a minus 2 का स्क्वायर प्लस b minus 2 root 3 का स्क्वायर. ठीक है, और ये ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी है. सो इसकी जो पूरी लेंथ है ये 4 है. ठीक है, नाउ सिंस वी नो दैट कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, सो आई कैन से दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16. इसमें आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. दिस इज वन इक्वेशन and this is equal to 4. This is another equation. If you solve this two equation, you will get the value of a and b. इसको simultaneously solve करोगे, आंसर आएगा. अनदर मेथड है कि ओके ये बहुत लंबा होने वाला है, तो बिकॉज द प्रॉब्लम इज दिस 2 root 3 आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम, सो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज ऑप्शन एलिमिनेशन. ठीक है, सो लेट्स सी कि अगर हम फर्स्ट ऑप्शन रखते हैं 0, -4, तो ये छोटा वाला इक्वेशन से सेटिस्फाई करके देखते हैं. तो दिस इज पुट a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू -4. तो फर्स्ट इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गया. Similarly, second equation, put a is equal to 0, b is equal to 4. So if you'll put in this first equation, तो second या first equation भी satisfy हो रहा है. Similarly, third, fourth से भी हो रहा है. तो ये तो कुछ काम का नहीं है. हम ये equation को अभी use करते हैं. Here we will put a is equal to 0 and b is equal to -4. हम first option try कर रहे हैं. तो ये क्या बन जाएगा? a -2 का स्क्वायर, यानी कि 0 -2 का स्क्वायर इज -2 का स्क्वायर, दैट इज 4, एंड प्लस b -2 √3 का स्क्वायर. ठीक है, सो b इज -4. -4 -2 √3 अगर हम करें, -4 -2 √3, सो देखो √3 की वैल्यू होती है 1.71. ठीक है, सो ये वैल्यू पूरी हो रही है 3.4 के आसपास. तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली -4 -3.4, सो -7.4 के आसपास जा रहा है. ठीक है, सो इसका आंसर तो 49 के ऊपर जाएगा. ठीक है, अगर हम ये स्क्वायर रूट दोनों साइड पे स्क्वायर कर दे, तो ये बन जाएगा. यहां से हम स्क्वायर रूट हटा देते हैं ऐसे. सो ये 4 प्लस 7.4 का स्क्वायर आपको 16 तो नहीं देगा. ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 16 हो रही है. तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल. सिमिलरली ये भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी b का वैल्यू नहीं, 4 है. वेट, सेकंड ट्राई करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है. लेट्स ट्राई द सेकंड ऑप्शन. पुट a इज इक्वल टू, मैं थोड़ा रब कर देती हूँ ताकि अपने को जगह मिल जाए थोड़ा. नाउ हियर दिस इज द एक्चुअली आर इक्वेशन. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते. सो b -2 √3 का स्क्वायर, दिस शुड बी 16. ये जो भी सेटिस्फाई करके देगा वो अपना आंसर बनेगा. फर्स्ट ऑप्शन नहीं जा रहा है. लेट्स ट्राई a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 4. So a is equal to 0. So 0 minus 2 का square is 4 plus 4 minus 2 √3. 4 minus 2 √3 का square. ये क्या 16 बन सकता है? तो ये देखिए
This value is once again 1.7, so this value is 3.4. तो 4 में से 3.4 निकालेंगे, सो 0.6 के आसपास आएगा. सो 4 प्लस 0.6 का स्क्वायर आपको 16 तो नहीं देगा, नॉट पॉसिबल. सो सेकंड ऑप्शन भी निकल गया. लेट्स ट्राई द थर्ड ऑप्शन, वेर इन a is equal to 4 and b is equal to 0. So a is 4, so 4 minus 2 का स्क्वायर, 4 minus 2 का स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4. एंड सेकंड इज b minus 2 root 3, b is so minus 2 root 3 का स्क्वायर. ओके, सो दैट इज इक्वल टू 2 root 3 का स्क्वायर ओनली. 2 root 3 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर, 2 root 3 का स्क्वायर, ये 16 बनना चाहिए. क्या ये बन रहा है? तो दिस इज 4 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 एंड रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3. यस, ये 16 बन के दे रहा है. सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. So we know that if there is a point A and its coordinate is x1 y1 and there is a point B और उसके coordinate से x2 y2, ठीक है. So since we know the coordinates of the point, we can find the length of the segment AB. लेकिन अगर इसके बीच में एक मिड पॉइंट है, एग्जैक्टली बीच में एक पॉइंट है C, इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्टली बीच में है. तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी x1 और x2 के एग्जैक्टली बीच में होगा. तो x कोऑर्डिनेट इज एग्जैक्टली बिटवीन x1 एंड x2, तो ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा. एंड y कोऑर्डिनेट इज एग्जैक्टली बिटवीन y1 एंड y2, सो ये बन गया y कोऑर्डिनेट. ठीक है. सो बीच वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करोगे? एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का ऐड करो कि डिवाइड बाय 2, बेसिकली आपको एवरेज लेना है. एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों का ऐड करो, डिवाइड बाय 2. वेरी सिंपल फॉर्मूला. ठीक है. सो फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी, ऑफ सॉरी मिड पॉइंट ऑफ द 2 पॉइंट्स ए एंड बी. इसका मिड पॉइंट निकालना है. तो दिस इज x1, दिस इज y1, x2 एंड y2. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे? x1 प्लस x2 का हाफ, सो 1 प्लस 4 का हाफ एंड -3 प्लस 5 का हाफ. 1 प्लस 4 इज 5, सो 5/2 बन जाएगा. x कोऑर्डिनेट इज 5/2 एंड y कोऑर्डिनेट इज 2/2, दैट इज इक्वल टू 1. सो आंसर इज 5/2, 1. ठीक है. नेक्स्ट. द सेंटर ऑफ अ सर्कल and one end of the diameter is given as -2,1 and 5,6. तो आप देख रहे हो एक सर्कल है, इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट है -2,1 और एक पॉइंट है, मान लो कि ये पॉइंट ये है, इसका कोऑर्डिनेट है 5,6. यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फाइंड द अदर एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल. तो यहां से अगर हम एक डायमीटर बनाते हैं ऐसे, तो आपको इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं. ठीक है. किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने? इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने. ओके, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो. पहले तो आप ये फॉर्मूला लगाओ और यू कैन गेट द आंसर, बिकॉज यू नो द मिड पॉइंट का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और एक एंड का कोऑर्डिनेट पता है, तो आप इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो. दूसरा मेथड है, सिंस दिस इज एग्जैक्टली बिटवीन, दिस पॉइंट इज एग्जैक्टली बिटवीन हियर, तो ये और ये डिस्टेंस तो सेम होने वाला है. सो आप देखो एक्स कोऑर्डिनेट पे कितना फर्क है. हियर एक्स कोऑर्डिनेट इज 5 एंड हियर एक्स कोऑर्डिनेट इज -2. 5 एंड -2 में कितना डिफरेंस होता है? सो हमें पता है कि डिफरेंस 7 का है. करेक्ट. सो -2 से और 7 कम कर दो, so that will become -9. सिमिलरली 6 एंड 1 कितने का गैप है? 5 का गैप है. तो 1 में और 5 माइनस कर दो, सो दिस विल बिकम -4. ठीक है. आप फॉर्मूला से करोगे तो भी आपको यही आंसर आएगा. नेक्स्ट. नाउ वी नो कि सपोज दिस इज ए एंड दिस इज पॉइंट बी. इन दोनों के अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता है, तो हम इनका मिड पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं. बट अगर सी मिड पॉइंट ना हो, तो जरूरी तो नहीं कि सी मिड पॉइंट ही हो सकता है कि ए बी यहाँ हो और सी यहाँ पर हो. सी इज नॉट द मिड पॉइंट. तो क्या उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं सी के? यस, यू कैन डेफिनेटली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, प्रोवाइडेड
कि आपको AC का और ये BC का रेशियो पता हो। ये जो लेंथ है AC और BC का लेंथ का अगर आपको रेशियो पता है तो भी आप कोऑर्डिनेट ऑफ C निकाल सकते हैं। This is called internal division and external division. Okay, so what does the internal division says? This is the example of internal division wherein there are 2 points A and B and C is somewhere between A and B, not the midpoint. We know the ratio of AC and BC. और ये रेशियो है सपोज m/n का। तो ये जो C के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो कुछ ऐसा बनेगा। तो C का कोऑर्डिनेट्स बनेगा, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो आपको ये C का अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है तो वो कुछ ऐसा बनेगा। ये जो नंबर है m, उसको आपको इसकी x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, और ये जो नंबर है n, इसको आपको दूसरे वाले के x कोऑर्डिनेट यानी कि x1 से मल्टीप्लाई करना है। सो mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। एंड सिमिलरली y2, ये x के लिए x कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं और y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए वी विल यूज y1 y2। सो y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनल डिवीजन, जहां पर कोई एक पॉइंट लाइन को इंटरनली कट कर रहा है। बट सपोज सिचुएशन ऐसा है कि ये दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी। वी नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी, और एक पॉइंट है बाहर, ये सी। इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं सी के। ए के कोऑर्डिनेट पता है, बी के कोऑर्डिनेट पता है, एंड हमें रेशियो भी पता है ए सी का और बी सी का। ये जो पॉइंट सी है वो ए से कितना दूर है और बी से कितना दूर है वो रेशियो पता है, लेंथ का रेशियो पता है। सो इन दैट केस वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। फर्क सिर्फ इतना है क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल डिवीजन है, तो हम ये जो प्लस था उसकी जगह पे माइनस कर देंगे हर जगह पे। ठीक है, सो वी हैव टू पुट माइनस साइन एवरीवेयर। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सो आइडिया आ जाएगा। Now, the coordinates of the point external and internal and external division of the line segment joining two points are in the ratio of 3:2. Okay. So पहले internal का ratio 3:2 दिया है। So suppose ये अपना this is point A, इसके coordinates दिए हैं 3, -1 and this is point B, इसके coordinates दिए हैं 3, 4। बीच में एक point है, मान लो कि C, suppose C is here, and this C cuts the segment AB in the ratio of 3:2, यानी कि ये अपना M है और ये N है। This is M and this is N, और ये रेशियो 3:2 का। This ratio is 3:2. So from this, if I want to find the coordinate of point C, कैसे निकालोगे? Internal division है, so we'll use the formula mx2 plus nx1 upon m plus n। तो m की वैल्यू 3 है, तो दिस 3 को इस वाले 3 से मल्टीप्लाई करना, एंड n का वैल्यू 2, इसको इसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है अपॉन m प्लस n, दैट इज 3 + 2। ये बन गया हमारा x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए 3 × 4 प्लस 2 × -1 अपॉन 3 प्लस। ठीक है, सो ये बन जाएगा, c के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 9 + 6 15/5 एंड 12 - 2 10 10/5। तो सी के कोऑर्डिनेट्स बन गए 3, 2। ठीक है, तो ये इंटरनल डिवीजन से सी के कोऑर्डिनेट्स बन के आ रहे हैं 3, 2। सिमिलरली एक्सटर्नल डिवीजन का रेशियो भी 3:2 का है, यानी कि ऐसा है कि दिस इज ए, दिस इज बी, इसके कोऑर्डिनेट्स पता है ए बी के, और सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं, एंड द रेशियो इज वंस अगेन 3:2, यानी कि इसको m मानेंगे तो ये 3 है और इसको n मानेंगे तो ये 2 है, ऐसा है।
सो सिमिलरली वी कैन ऑल्सो फाइंड एक्सटर्नल डिवीजन, लेकिन इसमें जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि हमारा आंसर ऑलरेडी आ चुका है। देखो, इंटरनल डिवीजन के कोऑर्डिनेट से 3,2, 3,2 वाला एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तो इसको फिर निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। PQRS are the vertices of parallelogram PQRS. Then this is question of NIMSET 2021. You need to find the coordinates of point S. तो ये एक पैरेललोग्राम है। आई बिलीव सबको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता होगी। Okay, there are different methods through which you can find the coordinates of point S. एक तो ये है कि we know कि PS is equal to QR, तो आप ऐसे QR की वैल्यू निकाल सकते हैं। वी नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ PQ, तो QR का लेंथ निकाल सकते हैं, दैट लेंथ इज इक्वल टू PS। सिमिलरली वी नो कि PQ इज इक्वल टू SR, तो दो इक्वेशन बनेगा, वहां से आप A और B की वैल्यू निकालो। दैट इज वन मेथड। इससे भी एक फास्ट मेथड है। पैरेललोग्राम में अगर हम इसके डायगोनल्स ऐसे बनाते हैं, सो डायगोनल्स आर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, दिस वी नो। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स आर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, तो कैन आई से दिस इज द मिड पॉइंट। इस पॉइंट को अगर हम O बोल दे, सो दिस इज द मिड पॉइंट। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम इसके पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। एंड नाउ सिंस वी नो द कोऑर्डिनेट ऑफ Q and coordinate of O, so we can find the coordinate of S once again using the midpoint formula. So here to use midpoint formula is better. Okay, so O के coordinates क्या बन जाएंगे? 1 plus 5 का half, 6 का half 3, and 2 plus 7 9, 9 का half हो जाएगा 9/2। ठीक है, so इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए 3 and 9/2। अभी आप देखिए S के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सो Q का कोऑर्डिनेट 4 है, O का कोऑर्डिनेट X कोऑर्डिनेट 3 है, सो 4 का 3 हो गया तो 3 का 2 हो जाएगा, बिकॉज द डिस्टेंस इज सेम। तो A इज इक्वल टू 2, ये तो कंफर्म है। एंड मिनट, PQR, R के कोऑर्डिनेट से 5,7। आई थिंक आई हैव रिटन ऑल द कोऑर्डिनेट्स प्रॉपर्ली। सो 1 plus 5 6 का हाफ 3, 9 plus 2 सॉरी 2 plus 7 9, 9 का हाफ 9/2। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन के आ रहे हैं? Q के देखो, इसके y कोऑर्डिनेट इज 6 एंड दिस इज 4.5, तो 6 का 4.5 हो गया। कितने का गैप है? 1.5 का। सो 4.5 में से वापस 1.5 कम कर दो, तो 3। सो इसका y कोऑर्डिनेट बन गया 3, करेक्ट। सो A इज इक्वल टू 2 एंड B इज इक्वल टू 3, दिस इज द करेक्ट आंसर। Okay, so this was a good question and very easy question. Okay, so now suppose there is a triangle and you know the coordinates of all the three vertices of a triangle. Since you know all the three vertices of a triangle, आप ये find out कर सकते हो कि वो triangle कौन सा वाला triangle है, whether it is a equilateral triangle, right angle triangle, scalene triangle, ये सब निकाल सकते हैं। एक और चीज आप निकाल सकते हो अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता है तो, और वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ज्योमेट्री में हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला देखा था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो सिर्फ कोऑर्डिनेट्स पता होंगे तीनों पॉइंट के, तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज हाफ इंटू मॉड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये करना है, इसका मोड लेना। मोड लेना यानी कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो नेगेटिव भी आंसर आता है तो पॉजिटिव ले लेना है, और जो भी आंसर आएगा उसका हाफ कर देना है। व्हेन वी डू द चैप्टर डिटर्मिनेंट, तो इस क्वेश्चन को डिटर्मिनेंट से भी सॉल्व किया जा सकता है। करंटली हम स्ट्रेट लाइन करें तो हम उस मेथड से करते हैं। सो फॉर्मूला ध्यान से देखो क्या है। फॉर्मूला इज x1 लेना है और x1 के साथ y2 y3 लेना है, फिर x2 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, फिर x3 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। दिस इज हाउ यू कैन रिमेम्बर। ठीक है, x1 x2 x3 और अंदर y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 y1 माइनस y2, जो भी आंसर आएगा उसका हाफ। हाँ, अगर एरिया 0 आ गया तो
अगर एरिया 0 आ गया, इसका मतलब है कि ये जो बन रहा है डायग्राम, ये ट्राइंगल है ही नहीं। इसका मतलब है कि ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. सो इफ एरिया इज 0, इट मीन्स दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर. नाउ कंसिडर द ट्राइंगल विद द फॉलोइंग वर्टाइसेस. ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स, सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन. कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल? यस. तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि इसमें गलती होने के चांस है. तो वी विल राइट x1 y1 एज -1, 2. ऐसे लिखते हैं, वेट, बेटर और थोड़ा बेटर. x1 -1, y1 2, x2 2, y2 3, x3 4 एंड y3 -3. ठीक है. सो दिस पार्ट इज डन. नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. फॉर्मूला क्या है एरिया का? x1, उसके अंदर आएगा y2 - y3. देन नेक्स्ट x2, 2 लिखा है तो नेक्स्ट 3 पे चले जाओ, y3 - y1. Put all the values and you will get the answer. x1 is -1, y2 -y3 यानी कि 3 minus -3 that is equal to 6, plus x2 is 2, y3 -y1 -3 -2 that is -5, plus x3 4, y1 -y2 2 -3 that is -1. -6 -10 -4. कितना हो रहा है? -20. -20 में माइनस साइन को लेना नहीं है क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता. सो आंसर इज नेक्स्ट. For what value of a will the points a, -6, -3, 4 and -1, 0 lie on the line? ठीक है. सो हम चाहते कि तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में हो, यानी कि उनका एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाए. ठीक है. सो इस क्वेश्चन को वंस अगेन दो मेथड से कर सकते हो आप. इफ आई कंसिडर दिस पॉइंट एज ए बी एंड सी, तो आप ए बी निकालो, बी सी निकालो, ए सी निकालो. अगर कोई भी दो का सम तीसरे के बराबर हो गया है, इट मीन्स दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर. अदर मेथड इज फाइंड द एरिया. वी नो सिंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर, सो एरिया जो आएगा 0 आएगा, तो वहां से भी आंसर मिलेगा. तो आप दो मेथड से कर सकते हो. फिलहाल मैं एरिया वाला मेथड यूज करूँ. सो x1 इज a and y1 is -6, x2 is -3, we know that area of triangle is 0, यानी कि वी नो दैट दिस इज 0. वो हाफ की कोई मतलब नहीं क्योंकि हाफ भी 0 ही होने वाला है. हाफ इंटू 0 इज 0. सो ये y2 -y3, -4 -0 will give you -4, y3 -y1, 0 -6 is +6, y1 -y2, -6 + 4, -2. From this, I can say that -4a, -3 into 6 is -18, and -1 into -2 is +2. So -4a is equal to 2 minus 18. 2 minus, oh sorry, -4a is equal to 18 minus 2. Is equal to 16.
नेक्स्ट, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, सो इफ यू नो द थ्री वर्टाइसेस, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थ्री वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल, तो हमें पता है हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, कौन से टाइप का ट्राइंगल है ये निकाल सकते हैं, इसका सेंट्रॉइड भी निकाल सकते हैं। सेंट्रॉइड इज नथिंग बट, क्या करना है इसके लिए, ये तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करो एंड डिवाइड बाई 3, so that will give you the x coordinate, and तीनों के y coordinate को ऐड करो, divide by 3, that will give you the y coordinate. in it means कि basically x1 x2 x3 का एवरेज लेना है, y1 y2 y3 का एवरेज लेना है, that is the coordinate of the centroid of a triangle. निम्सट 2012 का क्वेश्चन, 4, -3, -9, 7 are the two vertices of the triangle, 1, 4 is its centroid, then find the area of the triangle. ठीक है, तो इसमें आपको तीनों के तीनों वर्टाइसिस नहीं दिया है, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स दिया है, यहां से हमें तीसरा कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा, तीसरे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। so first we have to do that. Okay, so from this I can say that 1 is equal to, मान लो कि जो तीसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है a, b, so 1 is equal to 4 minus 9 plus a upon 3, correct? So from this I can say that 3 is equal to 4 minus 9 minus 5 plus a, so a is equal to 8. ठीक है, and similarly सेंट्रॉइड के वर्टेक्स y कोऑर्डिनेट इज 4, तो तीनों का एवरेज, तो -3 + 7 + b अपॉन 3, so 12 is equal to 4 + b, so b is equal to 8. ठीक है, so a is equal to 8 and b is equal to 8. नाउ सिंस वी नो तीनों के तीनों हमें वर्टाइसेस अभी मिल चुके हैं, सो x1 is 4, y1 is -3, x2 is -9, y2 7, और थर्ड कोऑर्डिनेट हमको मिल चुका है, x3 is 8 and y3 is also 8. So एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है हाफ, हाफ को अभी छोड़ देते हैं, पहले तो ये लिख देते हैं, x1, जो भी आंसर आएगा उसका हाफ कर देंगे, x1 is 4, y2 minus y3, so 7 minus 8 is -1, x2 minus 9, y3 minus y1, so 8 minus -3 is 11, and x3 is 8, y1 minus y2, so basically this is -3 minus 7, so it's -10. कितना होता है, 100 + 84 इट्स 184, 184 में से एक कम कर देंगे तो 183, माइनस साइन को इग्नोर करना है और हाफ करना है, सो आंसर इज ऑप्शन सी, 183/2. So in this particular module, we have covered, first we learned about the Cartesian coordinate system, and also we learned about midpoint formula, distance formula, section formula, and how to find the area of a triangle. I hope you have understood this video. So अगर आपको ऐसे ही वीडियोस पसंद है तो आप मुझे ये भी बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको और कौन से चैप्टर पे वीडियोस चाहिए, सो अकॉर्डिंगली आई विल प्रिपेयर द वीडियोस, एंड फ्रेंड को शेयर करो एंड सब्सक्राइब कर दिए, और पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, and keep on practicing math because math is easy. Thank you.